So, welcome to our ON ASOL online learning class of English, and we are meeting almost after a month. And what happened to me and what and that we will discuss after this class. We have to discuss also about the new timing if that suits everyone. But first, let us discuss what you people have done in the past 1 month. So, Grish, what you did in the past 1 month? And yes, one important thing, 72 Excuse me, sir. classes have been, yes, Excuse me, sir. yes. Sir, your voice is cracking. My voice is cracking again now because there is Yes, sir. some. Okay, so you continue. I am listening. Continue. Speak, beta. What you did? Okay. Are you speaking? Sir, Girish. your voice is cracking. No, but you continue, na? You continue. Even I can listen, na? I can listen what you are saying. Now my voice is clear. I have changed the internet. Yes, So what you did? I am watching your classes. I was watching. I was watching. And And I am learning English. and And I have. I. hmm, and I spoke English. okay. You were speaking in English at your home. Okay. And when your exams are coming, have you given your unit exams? Are they coming? January, February. The month of January and February, your exams are coming. Okay. Okay, Muskan, what you did for the last 1 month? सर हमारे तो एग्जाम चल रहे हैं अभी 15-20 दिनों से. Okay. And what you did? I am not saying what you are doing. I am saying what you did in the last 1 month. How you have worked on your English? Tell me. Like Greece said, he was speaking in English. Okay. Archana, Aradhya? Is it Aradhya? Good evening, sir. Who is this on? Who is there? Aradhya is there. Yes, sir. Yeah, Aradhya. How are you, dear? I'm fine, sir. And you? Yeah, I will discuss about myself after this class. But let us get to know each other after 1 month. What we have done. I'm doing a lot of things apart from whatever happened to me. But you tell me what you have done in the last 1 month on the point of view of English. Sir, I will do practice of maths Oh, and you are English. practicing maths and English. Okay, did you watch the videos? Anything that you left? Now all videos are available on our YouTube channel. If you haven't, you can go watch, or it's okay. Come to the class. Okay, let's begin the class because I have to keep my schedule very tight. So we were doing adverbs, and those who haven't come so far in the class, they can watch. Okay, later on I will discuss other things. So we were doing adverbs. 3 classes of adverbs have been made, and up to 72 classes of have been uploaded on YouTube. So we were doing adverbs of negation, नकारात्मक निगेट वाले adverbs कौन से वो हम लोग पढ़ेंगे आज. सिंपल है, नो, नॉट, ने, नेवर. जब भी हम ना करते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें? नो, नॉट, ने, नेवर. So these are the adverbs of negation. So what were the adverbs for your
and for my revision also. Adverbs are the modifying words. वो word जो modify करता है किसको? A word that modifies every part of speech except a noun, pronoun and interjection. Noun, pronoun, interjection को छोड़ के हर part of speech को modify कर देता है. जाहिर सी बात है, नाउन को तो कैसे क्या मॉडिफाई करोगे? आई एम ए बॉय. अब बॉय नाउन, आई एम नॉट ए बॉय, तो बॉय तो बॉय रहेगा ना. मैं नहीं होना, मेरा बॉय होना या नहीं होना क्या है? क्रिया है, वर्ब है. आई एम ए बॉय, मेरा बॉय होना या ना होना एक क्रिया है. बट अगर मैं कहूँ आई एम नॉट ए बॉय, तो नॉट लगाने से मेरा वो बॉय का होना या ना होना चेंज होगा. बॉय तो बॉय रहूंगा. Okay, so certainly a pronoun is not a word which changes a noun. Rajasthan is a pink city. Rajasthan is called pink city. If I say, Jaipur is called a pink city in Rajasthan. And if I say, if I say Jaipur is not a pink city. Now my sentence was जयपुर इज ए पिंक सिटी, कि जयपुर पिंक सिटी है. जयपुर इज ए नाउन. एंड इफ आई से जयपुर, तो जयपुर पिंक सिटी है. जयपुर का पिंक सिटी होना तो एक बात है, लेकिन मैं कहूँगा जयपुर पिंक सिटी नहीं है, तो किसी का कुछ होना भी एक हमारा वर्ब है. होना या चलना या करना. तो अगर मैं कहूँगा जयपुर पिंक नॉट ए पिंक सिटी, तो भाई पिंक सिटी थोड़ा ना मॉडिफाई हो जाएगा. उस पिंक सिटी, जयपुर का पिंक सिटी होना या ना होना मॉडिफाइड होगा. तो इसलिए वो कहता है कि जो एडवर्ब होते हैं वो हमारे नाउन को नहीं चेंज कर रहे, वो किसको चेंज कर रहे हैं? चेंजिंग द वर्ब. जयपुर का होना, मेरा लड़का होना, होने को ना होना कर देता है. तो ऐसे ये वर्ड्स है नो, नॉट. और ये आपको लैंग्वेजेस में आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे कि कहाँ पर मैं नो यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कहाँ नॉट यूज़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ. उसको टेंशन में घुसने की उसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है. अब एक वर्ड है, अब हम आते हैं हमारा सेकेंड काइंड ऑफ एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब्स पे. नाउ व्हाट इज ए रिलेटिव एडवर्ब? एक ऐसा एडवर्ब जो वाक्य को जोड़ता है. ये पहले से आने वाले नाउन या प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है पता है किसी को? राधा, व्हाट इज ए प्रोनाउन? आई विल ऑल्सो आस्क यू व्हाट इज ए प्रोनाउन. राधा, व्हाट इज ए प्रोनाउन? A word that takes the place of the noun is called a pronoun. वेरी गुड. जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम. वे शब्द जो नाउन के सर्व माने सबके कॉमन नेम हम किसी को दे देते हैं. मेरा, उसका, ही, शी, हर, ये हमारे क्या है? प्रोनाउन. ठीक है. तो अब ये जो रिलेटिव एडवर्ब है ये क्या करता है? ये दो वाक्यों को जोड़ता है और पहले से आने वाले नाउन या प्रोनाउन की ओर इशारा करते हुए समय, स्थान, कारण और तरीका, टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर बताता है. जैसे अब इस चीज को समझो, क्या है, कहना क्या जा रहा है? संकेत किसकी तरफ करता है? पहले से आने वाले नाउन या प्रोनाउन की तरफ. और बताता क्या है? समय बताता है, स्थान बताता है. अब समय और स्थान बताने वाले शब्द कौन से हैं ये तो आपको पता है, तो आपको पता लग गया भाई कौन से एडवर्ब है. अब मैंने किसी से टाइम पूछा, ठीक है, टाइम के लिए मैंने क्या पूछा? या मैंने किसी से पूछा तुम कब आ रहे हो? तुम
कब आ रहे हो, मतलब कि समय पूछना चाहता हूँ, तो मैं क्या पूछूंगा, व्हेन आर यू कमिंग। तो ये जो व्हेन शब्द है ये किसका सूचक है, क्या बता रहा है मुझे, टाइम के बारे में बता रहा है। अब कोई इंसान कहीं गया तो मैंने पूछा तुम कहाँ गए थे, तो मेरा संबंध किससे, किसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं, स्थान के बारे में, प्लेस के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि तुम बोलोगे कि भैया तुम कहाँ गए थे, तो क्या बोलोगे, वेयर हैव यू बीन या वेयर हैव यू गॉन। तो वेयर शब्द हो गया हमारा, ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब रीजन और मैनर, आप लेट आए, आप क्लास में लेट आए, मैम ने पूछा वाई आर यू लेट या वाई हैव यू कम लेट। तो वो जो वाई वर्ड मैंने लगाया वो क्या मेरा बता रहा है, रीजन। तो ये वाई क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। अब आता है मैनर। मैनर क्या होता है, तरीका। अब आपने एक बड़ी अच्छी कोई खाने की डिश बनाई और कोई आपका फ्रेंड आया और उसने पूछा आपसे, भाई हाउ हैव यू मेड दिस, आपने ये कैसे बनाई, या हाउ हैव यू कुक्ड दिस, कैसे पकाया बनाया जो भी है। तो वो जो उसने वर्ड लगाया हाउ, उसका मतलब कैसे, तो जो हाउ वर्ड है वो हमें पूछ रहा है कि तरीका, मैनर बताओ इसका। किसी ने, बच्चे ने बैड बिहेवियर किया, मैंने कहा वाई आर यू बिहेविंग इन सच ए मैनर, या वाई आर यू बिहेविंग सो, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, उसका रीजन। हाउ आर यू बिहेविंग सो, भाई क्या कारण है, क्या रीजन के अलावा हाउ, मतलब कैसे आप, तुम इतना कोई प्रॉब्लम है तुमको। तो ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब है। अब एक सेंटेंस देखो, प्लीज टेल मी द टाइम व्हेन यू गो टू मॉर्निंग। प्लीज टेल मी द टाइम, मेरे को मार्केट जाना था, मैंने किसी से पूछा प्लीज टेल मी द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू मार्केट। तो अब मैंने जो व्हेन लगाया इसमें दो बातें आई। जैसे मैंने आपको बताया रिलेटिव एडवर्ब सबसे पहले आपको बताया था, ये दो वाक्यों को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, इट विल कनेक्ट टू सेंटेंसेस। तो अब मैंने दो चीजें पूछी, प्लीज टेल मी टाइम, प्लीज टेल मी टाइम व्हेन you are going to market. So my another sentence is you are going to market and my first sentence is please tell me time. और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या वर्ड आ गया बीच में, when. ठीक है, क्लियर, क्लियर है बच्चों। एक बार हाँ बोल दो, इसको नहीं हुआ तो बोलो ना। यस यस, ओके, यहाँ पे यस ओके। यस सर। नेक्स्ट सेंटेंस, this is the place where Dr. Ambedkar gave his speech. This is the place, मैं आगरा गया, आगरा में डॉक्टर अम्बेडकर के 2 या 3 बार आए हैं भाषण देने। तो वहाँ पर मैं किसके साथ घूमने गया, वहाँ के लोकल थे, उन्होंने मुझे बात बोली, दिस इज द प्लेस, और ही कैन ऑल्सो से दिस इज द प्लेस इन आगरा, वट एवर, वेयर डॉक्टर अम्बेडकर गेव हिज स्पीचेस, जहां डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने भाषण दिए। तो यहां भी दो बातें आ गई। पहली बात तो उसने मेरे को बताई, दिस इज द प्लेस, ये प्लेस है। अपनी प्लेस क्या है, वेयर डॉक्टर अम्बेडकर जी गेव हिज स्पीचेस। तो जो वेयर लग गया वो मेरा रिलेटिव एडवर्ब हो गया, जो दो इन सेंटेंसेस को, दिस इज द प्लेस, और जो मेरा दूसरा सेंटेंस है वेयर डॉक्टर अम्बेडकर जी की स्पीचेस को जोड़ रहा है वेयर। सो वो हमारा रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब ऑफ अ प्लेस। प्लेस बता रहे हैं ना वो। दिस इज द रीजन वाई शी वॉज लेट। अब एक और आ गया, एक लड़की ऑफिस में लेट आई भाई। अब किसी ने पूछा कि भैया ये लड़की लेट क्यों आई है, तो दूसरे ने जवाब दिया दिस इज द रीजन वाई शी वॉज लेट। तो जो वाई मैंने लगाया, अब देखो दो सेंटेंस है, एक क्या हुआ
दिस इज द रीजन, या आपने कहा उसी से, चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं कि दिस इज द रीजन इज ए वन सेंटेंस एंड शी वाज लेट, टू सेंटेंस, दोनों को जोड़ दिया तो वाई लगा दिया, तो वो हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो गया। शी नोज द वे हाउ टू मेक अ केक एट होम। तो अब इसमें दो बातें आ गई, क्या आ गई? सो शी नोज द वे, एक सेंटेंस हो गया कि भैया उसे तरीका पता है, शी नोज द वे। और किस चीज का तरीका? हाउ टू मेक अ केक एट होम। तो मेक अ केक एट होम इज आवर सेकंड सेंटेंस। शी नोज द वे या शी नोज एक सेंटेंस है और दोनों को जोड़ना है हाउ। हाउ इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस कम्स, रिलेटिव एडवर्ब वाला जो वर्ड है हाउ, वेयर, वाई, व्हेन, ये आते हैं सेंटेंसेस के बीच में, तभी तो सेंटेंस बनेगा, क्योंकि ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। और इससे पहले जो नाउन होता है वो इसका एंटीसीडेंट कहलाता है। इन सब में पहले पहले एक नाउन आता है। चलो अब आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव माने पूछना, इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेशन करना। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? इसमें भी सेम वर्ड्स हैं, कई वर्ड सेम होंगे, जैसे वाई, हाउ। हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं? वाई, हाउ, फार, कितना, मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ, ये जितने भी क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं ये हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। बेसिकली दे आर टाइप ऑफ वर्ब्स बट दे कॉल देम एडवर्ब्स। जैसे सिंपल कोई भी है, वाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, या वाई आर यू सैड, वेयर इज अमित, हाउ यू आर फीलिंग दीज डेज, व्हेन डू यू स्टॉप कॉलिंग मी, तुम मुझे। तो ये सब सिंपल है, इतना को मुश्किल नहीं है। अब हम आ जाते हैं एडवर्ब्स की फॉर्मेशन में। हम एडवर्ब्स को बना देते हैं, कैसे? अलग अलग तरीके से हम एडवर्ब बनाते हैं, नाउन से, एडजेक्टिव से और पार्टिसिपल से। अब देखो, एक तो तरीका होता है एल वाई, तो हर वर्ड में एल वाई ऐड होगा ऐसा नहीं है। कई लोग हर वर्ड में एल वाई कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे नाउन में हम देखते हैं कुछ, आवर, HOUR, आवर, उसका हो गया आवरली, HOURLY। आवर माने घंटा, आवरली माने एक घंटे का। जैसे मैंने कहा हाउ मच यू टेक फीस, सो आई सेड आई टेक 500 रुपीज, ये तो पर आवर या आवरली बोल दूंगा। अब डे होता है, लेकिन डे का डेली हो जाता है, वीक का वीकली, मंथ का मंथली, ईयर का ईयरली और टाइम का टाइमली। डे वाले में DAY नहीं होता, उसमें DAY तो डे की स्पेलिंग होती है, लेकिन जब हम डेली लिखते हैं तो DAILY। वीक की स्पेलिंग WEEK, लेकिन वीकली हो जाएगा WEEKLY। मंथ का MONTH, वो हो जाएगा MONTHLY। ईयर का YEAR और ईयरली हो जाएगा YEARLY। टाइम का TIME और टाइमली हो जाएगा TIMELY। ठीक है, जैसे इनके मीनिंग्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मेरे घर रोज न्यूज़पेपर आता है, डेली आई गेट न्यूज़पेपर, प्रतिदिन। हर हफ्ते मैं बुध विहार जाता हूँ, सो आई गिव ए वीकली विजिट टू बुध विहार, आई कैन से दैट। हर महीने मैं पिकनिक मनाने जाता हूँ, सो आई कैन से लाइक दिस एवरी मंथ, बट बेटर होगा, या मुझे मंथली मतलब मासिक, कि वो चीज़ जो मंथली होती है
जैसे आई गेट मंथली मैगजीन, या आई गेट मंथली, आजकल चलता है सब्सक्रिप्शंस चलते हैं बहुत सारे। हमारा सब्सक्रिप्शन क्या है, ईयरली है, साल का ईयरली हो जाता है जो साल का होता है। और मंथली जैसे मैगजीन होती है, या कई लोग इंटरनेट का मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पैकेज भी बोलते हैं। और टाइमली होता है समय के हिसाब से, कम ऑन टाइमली या डू इट टाइमली, कि इसको समय के हिसाब से करो। तो एल वाई लग के हम इजीली, हमें वर्ड्स तो इंग्लिश के याद हो जाते हैं, टाइम पे टाइमली लगा दिया, वीकली लगा दिया, मंथली, बट उनका जो सेंस होता है उसको भी समझना जरूरी है। अब जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं एडजेक्टिव्स, किसी की विशेषता बताते हैं। ये आदमी दयालु है, काइंड है, काइंड माने दयालु। ये क्रूर है, क्रूअल है, क्रूअल माने क्रूर। ये ऐसे, इनमें भी हम एल वाई लास्ट में लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे काइंड का काइंडली, दयालु है, दया काइंड, दयालु काइंडली। जेंटल, GENTLE, आई थिंक दैट इज द स्पेलिंग, तो ये जेंटली, प्यार से। वाइजली, वाइस, WISE, वाइस, बुद्धि, बुद्धि वाइस, लेकिन वाइजली बुद्धिमत्ता पूर्ण, ए वाइजली स्टेप, कि आपने जो काम किया उसको बुद्धिमत्ता पूर्ण किया। रेगुलरली, स्टडी रेगुलरली, नियमित, रेगुलर माने नियमित, और रेगुलरली, रेगुलर मतलब वही है कि भाई करते रहो, रोज रोज, या जो भी, जैसे रेगुलर रहो, नियमित रूप से करो, और रेगुलरली नियमित। स्लो, स्लोली, स्लो, SLO, स्लो, धीरे, स्लोली, धीरे धीरे, धीरे से, वॉक स्लोली, धीरे चलो। नाइसली, NICELY, नाइसली, नाइस माने अच्छा, और नाइसली, स्पीक नाइसली, अच्छे से बात करो, अच्छे से। अब ये पार्टिसिपल्स है, लव, चार्मिंग, सरप्राइजिंग, स्पार्किंग, चेंज हो जाएंगे, लविंगली, चार्मिंगली, सरप्राइजिंगली, स्पार्किंगली। तो आप लोग एक अच्छी सी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लो और इनके मीनिंग्स भी पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाय एडिशन, बाय एडिंग ए preposition टू ए नाउन, टू एडजेक्टिव, टू एडवर्ब। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे ये देखो, जैसे हेड है, मैंने पीछे ए लगा दिया तो वो हो गया मेरा अहेड, ठीक है, अहेड माने आगे, लेकिन दोनों का मीनिंग ही बदल जाता है। तो ये मैं कुछ बताया तो इनको ज़्यादा, ये तो इनके मीनिंग से ही आपको पता लग जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा कहाँ गया प्रश्न, तो जैसे अहेड हो गया, अबैड हो गया, एश्योर हो गया, बिसाइड्स, इंडीड, टुडे, इन सब के आपको मीनिंग देखने पड़ेंगे। अहेड माने आगे, ठीक है, अबैड पता नहीं मुझे क्या है, एश्योर माने किनारा होता है, एश्योर, बिसाइड्स बगल में, या इंडीड हाँ होगा, टुडे आज, तो डे से पहले टुडे लग गया, डीड से पहले इन लग गया, डे से पहले टू लग गया, इंडीड में डीड से पहले इन लग गया, ये इन, टू, बिसाइड्स में बी पहले लग गया, तो ये प्रपोजिशन होते हैं। एश्योर में ए लग गया, शोर का एश्योर हो गया। अहेड में हेड से पहले ए लग गया। ऐसे ही एडजेक्टिव्स होते हैं भैया, वो कि लंबा, लॉन्ग, एलॉन्ग, ए लगा दिया, एलॉन्ग बन गया, लेकिन इनके मीनिंग चाहिए। क्रॉस, क्रॉस से पहले अक्रॉस ए लगा दिया, ए क्रॉस को एक साथ कर दिया अक्रॉस। लो से पहले बी लगा दिया, बिलो, ठीक है। ऐसे बिटवीन, एडवर्ब्स एज हेयर विद,
देयर बाय हैंस फोर्थ, HEREWITH, हेयर विद। इन सब के मीनिंग देखना डिक्शनरी में। ये मैं आपको बता देता हूँ, पर ये और थोड़ा इसके सेंटेंसेस देखना, समझ में आएंगे। HEREWITH एक वर्ड है, दो वर्ड में हेयर और विद दो वर्ड है। तो देयर बाय हैंस फोर्थ, हेयर विद इसके साथ, देयर बाय फिर, हैंस फोर्थ उसके बाद। ये इनके ऐसे मीनिंग चलते हैं और सेंटेंसेस में देखना आप, एक मीनिंग नहीं होता, अलग अलग जगह आप सेंटेंसेस के हिसाब से करते हो। आगे है बाय कंबाइनिंग ए नाउन एंड एन एडजेक्टिव एस। तो क्या होता है, नाउन और एडजेक्टिव को आप मिला, समटाइम्स सम और टाइम को मिला के बन गया समटाइम्स। अदर और वाइस को मिला के OTHERWISE अदरवाइज। मिड और वे को मिला के मिड वे, बीच में, बीच के रास्ते में। मीन टाइम को मिला के मीन टाइम। ईस्टवर्ड पश्चिम, पूर्व की ओर, पूर्वी, ईस्टवर्ड्स। एडवर्ब्स ऑफ नाउन, जैसे वन नाउन है वन, तो वन का हमारा क्या बनता है, आप लोग स्टोरी पढ़ते हो तो वन की जगह क्या लगता है, एक बार एक राजा था, क्या लिखा होता है, वंस अपॉन देयर वाज अ किंग। तो वन का क्या बनता है ये बच्चों, वंस। टू का क्या बनता है, ट्वाइस। थ्री का थ्राइस। और फोर का फोर फोल्ड, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, कुछ शब्द एक ही रूप फॉर्म में एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं, वो हम कल करेंगे। तो मैं आज की ये क्लास यही खत्म होता हूँ। 2 मिनट का रुकोगे आप सब, मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो कल मिलते हैं हम। ये 73 नंबर की क्लास थी, कल 74 नंबर की क्लास होगी। बाय बच्चों। बाय सर। बाय। बाय बाय।